Hello students, this is Priyanka Arora once again in front of you, welcoming you all to your maths online class. So in my last lecture, I have explained you question number 6 to question number 10 of exercise 5.1, chapter number 5, fractions. So with that, we have completed total 10 questions of exercise 5.1, and today in this particular lecture, I will be explaining you all the remaining questions of exercise 5.1, and today we will finish exercise 5.1. So without wasting any more time, let us begin with question number 11th of exercise 5.1, chapter number 5, fractions. So students, question number 11 to question number 14 is related to another type of fraction, that is equivalent fraction. Okay, and then the last question, question number 15, is related to converting the fractions into lowest term. So first of all, let me explain you about equivalent fractions. Equivalent fraction, as per the name of the fraction, you must understood that it is equivalent. So equivalent means equal fraction. Okay, so it is the way to find out equal fraction from one given fraction. How to find it out, that I will explain you in question number 11 to question number 14. So let us begin with two of the parts of question number 11. See students, in question number 11 and question number 12, so many parts are there and all the parts are similar. So I will be teaching only two parts from these two questions, and the remaining parts we will be discussing in our next live class. So let us begin with one of the part of question number 11. So that part is 15 upon 19, and what we have to do in this question number 19, we have to find three equivalent fractions for each of the following fractions. जो भी fractions given है इस particular question में, उसके three equivalent fractions हमें find out करने हैं. So two parts which I will be explaining you from this question number 11 is part H and part I. So part H is 15 upon 19. Now how to find the equivalent fraction of any given fraction? कैसे हम find out करेंगे? पहले हम जो भी fraction given है उसको 3 equivalent fraction निकालने हैं, उसके 3 equivalent fraction निकालने हैं. तो हम इस given fraction को 3 times note down कर लेंगे. तो मैं इस 15 upon 19 को 3 times note down कर रही हूँ यहाँ पर. ओके, अब one by one equivalent, as I told you, equivalent means equal. equivalent का मतलब होता है equal. तो किसी भी given fraction का equivalent fraction निकालने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं. ओके, टू गेट इट इक्वल फ्रैक्शन. फाइन. सो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, जो भी मेरा फ्रैक्शन गिवन है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से, देन मैं सेम नंबर को मल्टीप्लाई करूंगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से, एंड देन मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से. नाउ इट इज नॉट कंपल्सरी टू मल्टीप्लाई इट इन सीक्वेंस. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस में ही मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 से फिर 3 से फिर 4 से. आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट कंडीशन आपको यही ध्यान रखनी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए. आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो. नो, अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा. दैट विल नॉट बी एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने की यही कंडीशन होती है कि अगर हम गिवन फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो जो रिजल्ट आता है वो गिवन फ्रैक्शन का इक्वल फ्रैक्शन होता है. ओके, सी अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 15 2 is 30 एंड 19 2 is 38. देन 15 3 is 45 एंड 19 3 is 57. देन 15 4 is 60 एंड 19 4 is 76. सो ये जो 3 फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करे हैं, ये जो रिजल्ट है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. ओके, अब आप कैसे चेक कर सकते हो कि इक्विवेलेंट है या नहीं है? आप यहाँ पर 30 और 38, जब आप इसको वापस कैंसिल करते हो, अगर आप 30 और 38 को कैंसिल करके देखते हो 2 की टेबल से, सो 2 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स और 2 की टेबल से 18 कैंसिल हो जाएगा 19 टाइम्स. तो आप देख सकते हो वापस क्या आ गया, 15 अपॉन
19, दैट फ्रैक्शन ओनली विथ विच वी हैव स्टार्टेड सॉल्विंग। इसी तरीके से आप 45 और 57 को भी अगर चेक करोगे, सो 45 और 57 दोनों ही 3 की टेबल में आ रहे हैं, तो आप 3 से जब इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा आपके पास में 15, और वापस 3 से आप कैंसिल करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 19, आ गया वापस 15/19। सो बस यही आपके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/19 आर 30/38, देन 45/57 and the next 60/76. So like this we can find the equivalent fraction of any given fraction in the question. Let us move on to part I now. It is 23/31. अब जो fraction given है वो है 23/31 और इसके भी हमें 3 equivalent fraction फाइंड आउट करनी है। तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप क्या करोगे, जितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं उतने टाइम्स आप गिवन फ्रैक्शन को नोट डाउन कर दोगे। तो यहाँ पर 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं, तो मैंने 23/31 को 3 टाइम्स नोट डाउन कर दिया है। अब मैं लगाऊंगी मल्टीप्लाई का साइन। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि हम मल्टीप्लाई भी करके फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और डिवाइड करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो दोनों पार्ट्स हैं ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे थे, लाइक 15 और 19 किसी भी सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते। अगर डिवाइड भी करना है तो सेम टेबल से हमें डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये नंबर्स किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे थे। इसीलिए जो मैंने इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैलकुलेट करे हैं वो मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करे हैं। अदरवाइज अगर डिवाइड हो रहे होते सेम टेबल से तो हम डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आई पार्ट के अंदर भी आप देखेंगे 23/31 है, तो ये दोनों ही नंबर प्राइम नंबर्स हैं जो किसी भी सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं। दैट्स वाई वी विल मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन ऑल्सो टू गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो अब जैसा मैंने आपको बताया, आप क्या कर सकते हैं, इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ये भी मैंने आपको बताया था कि इट इज़ नॉट कंपलसरी टू मल्टीप्लाई इट इन सीक्वेंस। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 के बाद हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, 3 के बाद हमें 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, नहीं। कंडीशन बस ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सेकंड में मैं इसको डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, थर्ड में मैं इसको डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। कंडीशन बस कंडीशन फॉलो करी है मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने इक्वल वैल्यूज ली है टू गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ मल्टीप्लाई इट। 23 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा 46। 31 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा 62। 23 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 3s is 15, 5 2s are 10 plus 1 is equals to 11 and 5 1s are 5 and 5 3s are 15, 155, 115/155 और 10 से मल्टीप्लाई करना वेरी सिंपल, 230/310. So these are the 3 equivalent fraction of 23/31. So we can mention these 3 equivalent fraction here like this. So students, this is the way to find out the equivalent fraction of any given fraction. Fine. So like this you can solve the remaining parts of this particular question. This question is very simple, so I suppose it is not necessary to give you the explanation of all the parts. You can simply multiply the numerator and denominator with equal values, and one more time I will explain you the remaining parts in the live class. So let us now move on to question number 12. So in question number 12 again we have to find the equivalent fraction, and in question number 11 it was asked to find out 3 equivalent fraction, and in question number 12 it is asked to find out 5 equivalent fractions. So same thing is there, only the number of fractions they have increased. So again I have just picked up 2 parts from question number 12. Okay, as I told you that all the parts are similar, so I will not be explaining all the parts. I am just taking 2 parts of this particular question, remaining all the parts are सेम. सो 2/7 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इस 2/7 को हम 5 टाइम्स नोट डाउन कर लेंगे. सो 2/7 2/7 2/7 3 times I have noted it down here. Now 2 times I will note it down here. 2/7 and 2/7. Okay, then multiply upon
इक्वल्स एंड देन अपॉन. ओके, नाउ सिमिलर वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. सो हियर आई एम मूविंग विथ कंटिन्यूएशन. यहाँ पे मैं कंटिन्यूएशन में ही चल रही हूँ. आप चाहो तो आप दूसरे नंबर्स से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. ओके, 2 2 इज 4, 7 2 इज 14, 2 3 इज 6, 7 3 इज 21, 2 4 is 8, 7 4 is 28, 2 5 is 10, 7 5 is 35, 2 6 is 12 and 7 6 is 42. So these are the 5 equivalent fractions. ये 5 equivalent fractions हमें कैलकुलेट हो गए हैं. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा आंसर 4/14. 4/14 के बाद में 6/21, आफ्टर दैट 8/28 एंड देन 10/35 एंड देन 12/42. और आप अगर चेक भी करना चाहें इनमें से किसी को भी, लाइक ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं 3 की टेबल से. सो 3 2 6 एंड 3 7 27. आप देख सकते हो कैंसिल होने के बाद में हमें वापस वही वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है जिससे हम हमारा फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं. ओके, सो लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट एनी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. कितने भी पूछे जाएं क्वेश्चन के अंदर आप उतने फाइंड आउट कर सकते हैं. फाइन. सो सिमिलरली पे अटेंशन ऑन पार्ट एच 7/8. सो 7/8 को भी हम क्या करेंगे 5 टाइम्स मेंशन कर लेंगे. 1 then 2 and then 3. Put multiplication sign, then after multiplication upon sign, then equal sign. Firstly prepare the format, then the multiplication will be easy. 3 fractions 3 times हम यहाँ लिख चुके हैं, 2 times मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ. 7/8 7/8 multiply upon sign, equal sign and then again upon sign. फॉर्मेट रेडी हो चुका है. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 1. अगेन हेयर आई एम टेकिंग इन सीक्वेंस 3/3, 4/4, 5/5 and 6/6. So 7 2 is 14, 8 2 is 16, 7 3 is 21, 8 3 is 24, 7 4 is 28, 8 4 is 32, 7 5 is 35, 8 5 is 40, 7 6 is 42, 8 6 is 48. So these are the 5 equivalent fraction of 7/8. So we can mention our answer here 14/16, then 21/24, then 28/32, then 35/40 and then finally 42/48. So I hope students question number 11 and question number 12 is clear to you. So let us move on to question number 13 now. Now the next question is again related to the topic equivalent fraction and it is write an equivalent fractions for each of the following. Write n. n means 1. Okay? तो यहाँ पर हमें सिर्फ n यानी कि सिर्फ 1 equivalent fraction find out करना है सारे पार्ट्स के अंदर. So see how to find it out. ए पार्ट में क्या है 2/3 विथ 24 एज द डिनोमिनेटर. तो पहले जो भी फ्रैक्शन गिवन है हम वो फ्रैक्शन लिखेंगे. 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो आप पहले फॉर्मेट रेडी कर दीजिए. इस तरीके से आप फॉर्मेट रेडी कर दीजिए. और क्या कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में 24 एज द डिनोमिनेटर में. हमें डिनोमिनेटर में चाहिए नंबर 24. अब आपको देखना होगा स्टूडेंट्स कि 3 की टेबल में कितने टाइम्स नंबर 24 आता है. सो इन द टेबल ऑफ 3 24 कम्स 8 टाइम्स. तो आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से. क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो अगर हम डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम 8 लिख देंगे न्यूमरेटर में भी. अब आप मल्टीप्लाई करिए तो 2 × 8 इज इक्वल्स टू 16. सो दिस इज योर आंसर ऑफ एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ये हमारा एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैलकुलेट हो गया जो कि क्वेश्चन में कहा गया था. 2/3 को बेस लेकर बेस फ्रैक्शन लेके हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसके डिनोमिनेटर में वैल्यू आनी चाहिए 24. So like this we have to do all the remaining parts. See part B. तो यहाँ पर भी हम फ्रैक्शन जो गिवन है वो है 1/5. तो पहले हम फ्रैक्शन लिखेंगे. फ्रैक्शन लिखते ही स्टूडेंट्स आप पहले फॉर्मेट रेडी कर दीजिए. इस तरीके से आप ब्लैंक फॉर्मेट
रेडी कर देंगे फ्रैक्शन लिखने के बाद में। नाउ 1/5 विथ 30 एज द डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर में आना चाहिए 30, तो जो डिनोमिनेटर में आना चाहिए वो हम आंसर में प्लेस कर देंगे। यहाँ पर आ गया हमारे पास डिनोमिनेटर में 30। नाउ 5 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका आंसर 30 आ जाए? तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, बिकॉज 5 6 इज 30। तो अगर हम डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज इट इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो 1 into 6 इज इक्वल्स टू 6। सो हमारा आंसर हो जाएगा 6/30, जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/5 का। आप इसको कैंसिल करेंगे 6 की टेबल से तो आप देखेंगे वापस आंसर आ जाएगा आपका 1/5। नाउ सी, हियर इट इज पार्ट सी 2/7। सो फ्रैक्शन है गिवन यहाँ पे 2/7, हम लिखेंगे पहले 2/7। नाउ प्रिपेयर द फॉर्मेट लाइक दिस। नाउ व्हाट इज देयर? इट इज 21 एज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमें चाहिए नंबर 21, तो हम 21 प्लेस कर देंगे। 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर से कि 21 आ जाएगा। सो 7 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू गेट 21। सो अगर डिनोमिनेटर में 3 है तो न्यूमरेटर में भी 3 आएगा। सो 2 into 3 is equals to 6. So 6/21 is the answer of part C. Let us move on to part D. फ्रैक्शन गिवन है यहाँ पर 7/9। फॉर्मेट रेडी करेंगे हम। अब डिनोमिनेटर में क्या गिवन है स्टूडेंट्स? डिनोमिनेटर में गिवन है 63। सो इस 63 को हम आंसर में प्लेस कर देंगे। नाउ 9 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू गेट 63। सो डिनोमिनेटर में अगर नंबर 7 आ रहा है तो न्यूमरेटर में भी नंबर 7 हम प्लेस करेंगे। सो 7 7 इज इक्वल्स टू 49। सो यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 49/63। लेट अस मूव ऑन टू पार्ट ई। 2/4 विथ 16 एज न्यूमरेटर। तो अब हम वापस हमारा फ्रैक्शन लिखेंगे, इट इज 2/4। फॉर्मेट रेडी करेंगे हम, ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया। अब न्यूमरेटर में चाहिए हमें नंबर 16, तो हम हमारे आंसर के न्यूमरेटर में लिख देंगे नंबर 16। नाउ 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 8 टू गेट 16। 2 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 16 आ जाए। न्यूमरेटर में 8 है तो डिनोमिनेटर में भी 8 आएगा। सो 4 8 इज इक्वल्स टू 32। So 16/32 is the answer of part E. Let us move on to part F. 4/7. So हमारा फ्रैक्शन है 4/7। हम हमारा फॉर्मेट रेडी करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमें न्यूमरेटर में चाहिए नंबर 24, तो यहाँ पर मैं न्यूमरेटर में लिख दूंगी 24। 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर से कि 24 आ जाएगा। सो 4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6, बिकॉज 4 6 इज 24। और अगर न्यूमरेटर में 6 है तो डिनोमिनेटर में भी 6 आएगा। 7 6 इज 42। सो 24/42 इज द आंसर ऑफ पार्ट F. Let us move on to part G. It is the fraction is 3/4 multiply by I have prepared the format. Now in the numerator we want 27. हमें न्यूमरेटर में नंबर 27 चाहिए, तो हम रिजल्ट में लिख देंगे 27। अब हम 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि न्यूमरेटर में 27 आ जाएगा। सो 3 9s are 27। न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो डिनोमिनेटर में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। सो 4 9s are is equal to 36. So this is the equivalent fraction of part G. Now finally part H. So 1/3 is the fraction, और यहाँ पे बोला गया है कि न्यूमरेटर में आना चाहिए 10, तो पहले हम फॉर्मेट रेडी कर देंगे और न्यूमरेटर में हम लिख देंगे नंबर 10 विच इज गिवन इन द पार्ट। अब 1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 10 आ जाएगा। सो ऑब्वियसली 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर 10। सो 1 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 3 को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 10s is 30. So 10/30 is the answer of part H. So this was quite a simple question. I hope this question is clear to you all. Now let us move on to next question, that is question number 14. Yes students, so now question number 14 is again related to equivalent fraction, and here some equivalent fractions numbers are missing. So we have to find out the missing numbers. So see, one by one we will be solving it. How to solve it? Just pay attention. जो भी फर्स्ट फ्रैक्शन वैल्यू गिवन है पहले हम वो फर्स्ट फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 2/3। ओके, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे हम, क्योंकि आगे की जो वैल्यू है आप देखेंगे इंक्रीज हो रही है। अगर जो भी प्रीवियस वैल्यू है और उसके आगे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज वैल्यू हम
मल्टीप्लाई करके ही कैलकुलेट कर सकते हैं। डिवाइड करने से वैल्यू डिक्रीज होती है और मल्टीप्लाई करने से वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर 2/3 के बाद में 4/6 आ रहा है, तो दैट मीन्स डेफिनेटली ये मल्टीप्लाई होकर आया है। तो अब आप देखिए हमें नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4/6 किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है, हमने 2/3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास में आंसर आ जाए 4/6। तो ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6। सो 4/6 तो हमें ऑलरेडी गिवन थी। अब नेक्स्ट है 6/ब्लैंक है, तो 4 को तो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 नहीं कैलकुलेट हो सकता, तो हम 4 को नहीं लेंगे, यहाँ पर हम बेस फ्रैक्शन 2/3 को ही ले रहे हैं। 2/3 को ही हमने वापस बेस फ्रैक्शन लिया। अब हमें जो नेक्स्ट वैल्यू है वो न्यूमरेटर में 6 गिवन है। सो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाएगा। सो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अगर 2 को 3 से कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 3 आ जाएगा 9। तो दैट मीन्स 6 के नीचे क्या आ गया हमारे पास में 9। सो यहाँ पर जो मिसिंग वैल्यू थी वो क्या आ जाएगी 9। तो यहाँ पर आप फर्स्ट मिसिंग वैल्यू के अंदर फिल कर देंगे नंबर 9। अब देखिए नेक्स्ट मिसिंग वैल्यू, नेक्स्ट फ्रैक्शन गिवन है 15, डिनोमिनेटर में 15। तो अभी भी हम बेस फ्रैक्शन लेंगे 2/3 को, 2/3 को ही बेस फ्रैक्शन लेकर हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे नंबर 15, क्योंकि डिनोमिनेटर गिवन है, न्यूमरेटर मिसिंग है। अब हम 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आ जाएगा। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो न्यूमरेटर में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। सो 2 5 इज 10। तो यहाँ पर 15 के ऊपर की जो मिसिंग वैल्यू है वो आ गई है हमारे पास में 10। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे नंबर 10। अब आप नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे। अब न्यूमरेटर में आ रहा है हमारे पास में 12। अब ये जो 12 है हम 6 से भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हम 12 कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 कैलकुलेट कर सकते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इन तीनों में से किसी भी फ्रैक्शन को बेस फ्रैक्शन मान सकते हो यहाँ पर। तो जैसे मैं आपको 6/9 को बेस फ्रैक्शन मान के सॉल्व करवा रही हूँ। यहाँ पर देखिए हमें क्या है, मेनली हमें चाहिए न्यूमरेटर के अंदर 12। तो हम 12, 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हम इजीली 12 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 2 हो जाएगा 18, 12/18। सो 12 के नीचे जो मिसिंग फ्रैक्शन था वो आ जाएगा डिनोमिनेटर 18। अब अगर आपने यहाँ पर 6/9 को बेस फ्रैक्शन ना लेकर 4/6 को लिया होता तो क्या हुआ होता, तो भी आपका आंसर सेम ही आता। आप देखिए अगर मैंने यहाँ पे 4/6 को लेके किया होता, मुझे न्यूमरेटर में क्या चाहिए था 12, तो मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करती, मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करती। तो अगर न्यूमरेटर में 3 है तो डिनोमिनेटर में भी 3 होगा। सो 6 3 इज 18। आप देखिए वापस क्या आ गया 12/18। तो आप बेस फ्रैक्शन चाहे 6/9 को लें, 4/6 को लें या 2/3 को लें, यही अगर आप 2/3 से भी चेक करेंगे, देखिए अगर 2/3 से मैं चेक करके बताती हूँ, हमें क्या चाहिए न्यूमरेटर में 12 चाहिए। सो 2 को मल्टीप्लाई करूंगी 6 से, तो 3 को भी मल्टीप्लाई करूंगी 6 से, तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 3 6 इज 18। सो देखिए 12/18 ही आएगा हर कंडीशन में, आप किसी से भी मल्टीप्लाई करें, इट डिपेंड्स ऑन यू। किसी को भी आप बेस फ्रैक्शन कंसिडर करिए, बस ये कंडीशन है कि न्यूमरेटर में जो गिवन वैल्यू है वो कैलकुलेट होनी चाहिए। नाउ अब आप देखिए नेक्स्ट फ्रैक्शन में मिसिंग में न्यूमरेटर में गिवन है 18। तो अगेन हम 18 को 6 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं बेस फ्रैक्शन ले रही हूँ 6/9, इसी को मैं बेस फ्रैक्शन ले रही हूँ, मल्टीप्लाई किस नंबर से करूंगी कि मेरे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा नंबर 18। 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 18 आ जाएगा 3 से। तो अगर न्यूमरेटर में 3 से कर रही हूँ तो डिनोमिनेटर में भी 3 से करूंगी। 6 3 18, 9 3 27। तो यहाँ पर मिसिंग वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 27। तो जो भी मैंने रेड इंक से नंबर्स शो करे हैं वो सब हमारे मिसिंग वैल्यूज के आंसर हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ है ए पार्ट। सो लेट अस मूव ऑन टू पार्ट बी। अब हम पार्ट बी की तरफ जाएंगे। आप देखेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन जो बेस फ्रैक्शन है 12/16 है यहाँ पर। अब देखिए 12/16 है और जो नेक्स्ट है वो डिक्रीज होकर आया है, पहले वाला इंक्रीज है, दूसरा वाला डिक्रीज है। तो अगर दूसरा नंबर डिक्रीज हो गया है तो ऑब्वियसली वो डिवाइड करके ही फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पे हमें 12/16 को सिमिलर नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना होगा, सो दैट हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर वैल्यू आ जाए
3। सो 12 को किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे कि न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा? सो 12 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। अगर न्यूमरेटर में 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी 4 से डिवाइड करेंगे। सो 16 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा नंबर 4। दैट मीन्स जो मिसिंग वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास में 4। फाइन। अब आप देखिए नेक्स्ट फ्रैक्शन, यहां पर हमें चाहिए नंबर 8। अब इस नंबर 8 को आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो और डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। कैसे? अगर हम बेस फ्रैक्शन 12/16 ही लेते हैं, यहां पे अगर मैं बेस फ्रैक्शन 12/16 ले रही हूं और मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, यहां पे नंबर 8, तो 16 को किस नंबर से डिवाइड करके हम 8 कैलकुलेट कर सकते हैं? सो 16 विल बी डिवाइडेड बाय 2। सो अगर 16 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 12 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। 12 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? नंबर 6। तो ये हो जाएगा 6/8। और अगर आप 12/16 को बेस फ्रैक्शन ना लेकर 3/4 को बेस फ्रैक्शन लेते तो भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे? देखिए, अगर हम 3/4 को लेके करते तो 3/4 को लेके क्या हो रहा है, इससे नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर प्रीवियस फ्रैक्शन से नंबर इंक्रीज होता है तो मल्टीप्लाई होगा और प्रीवियस फ्रैक्शन से आगे वाला नंबर डिक्रीज होता है तो डिवाइड होगा। अगर हमने 12/16 को बेस लिया था तो आगे डिक्रीज हो रहा है तो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया था। अब अगर मैं 3/4 को लेके आपको समझा रही हूँ तो 3/4 के कंपैरिजन में आगे इंक्रीज हो रहा है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करूंगी। मुझे डिनोमिनेटर में 8 चाहिए तो मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 2 से। तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6/8। आप देख सकते हो दोनों वैल्यूज सेम है। तो कहने का मतलब यही है, आप डिवाइड करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप बेस फ्रैक्शन किसको मान रहे हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हमें चाहिए 24 अपॉन मिसिंग। 24 मैं किससे फाइंड आउट कर सकती हूँ? अगर मैं 6/8 को भी बेस फ्रैक्शन लेती हूँ, यहाँ पे अगर अब मैं बेस फ्रैक्शन ले रही हूँ 6/8 को, तो 6/8 से भी मैं 24 कैलकुलेट कर सकती हूँ न्यूमरेटर में, बिकॉज 6 की टेबल में 24 आता है कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो 6 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं 8 को भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 4 इज इक्वल टू 32। सो 24 के नीचे जो मिसिंग वैल्यू थी वो क्या आ जाएगी? 32। फाइन। अब नेक्स्ट क्या वैल्यू चाहिए मुझे? डिनोमिनेटर में 80 चाहिए। तो इसके लिए जो मैं बेस फ्रैक्शन है वापस मैं 6/8 को बेस फ्रैक्शन यहाँ पर ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? मुझे चाहिए डिनोमिनेटर में 80। तो 8 को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास डिनोमिनेटर में इजीली क्या कैलकुलेट हो जाएगा? नंबर 80। तो मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगी 10 और इसी 10 को मैं न्यूमरेटर में भी प्लेस करूंगी बिकॉज इट इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो 6 10 इज इक्वल्स टू 60। तो 80 के ऊपर जो मिसिंग वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 60। तो यहां पर हम फिल कर देंगे 60। अब यहां पर नेक्स्ट में मुझे चाहिए डिनोमिनेटर में 64। तो ये भी मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ 6/8 से, 12/16 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3/4 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैं बेस यहाँ पर 6/8 को ही लेकर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए 6/8 और मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए 64। सो 8 को किससे मल्टीप्लाई करके 64 कैलकुलेट कर सकते हैं? 8 8 जा 64। तो यहाँ पर आ जाएगा 8। डिनोमिनेटर में 8 है तो न्यूमरेटर में भी 8 आएगा। 6 8 जा इज इक्वल टू 48। सो यहाँ पर जो मिसिंग वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 48। यही अगर मैं आपको 12/16 से कैलकुलेट करना बताती तो देखिए अगर बेस हम यहाँ पे 12/16 को लेते, मल्टीप्लाई किस नंबर से करते कि हमको न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मिल जाता 64। सो 16 की टेबल में 64 आता है स्टूडेंट्स 4 टाइम्स। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करती 4 से तो न्यूमरेटर में भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करती। सो 12 4 इज इक्वल्स टू 48। तो अगर आप बेस फ्रैक्शन 12/16 को लेकर करते तो भी आपका आंसर यही आता, और अगर आप बेस फ्रैक्शन 3/4 को लेकर करते हो, 3/4 से भी चेक कर लेते हैं हम, 3/4 को लेके करते हैं और डिनोमिनेटर में चाहिए हमें 64। सो 4 की टेबल में 64 आता है स्टूडेंट 16 टाइम्स। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से, क्योंकि ये ग्रेटर नंबर हो जाता, इसलिए मैंने 3/4 को बेस फ्रैक्शन लेकर आपको नहीं समझाया था। मैंने बेस फ्रैक्शन लिया था 6/8 को, क्योंकि 8 से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ देखिए अगर डिनोमिनेटर में 16 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 16 से करेंगे एंड 16 3 इज इक्वल्स टू 48।
8। सो बेसिकली आप किसी भी फ्रैक्शन को बेस बनाकर करिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। बस आप ऐसे फ्रैक्शन को बेस बनाइए जिससे आप कैलकुलेट इजीली कर सके। अगर आपको कैलकुलेशन में डिफिकल्टी फील हो रही है तो आप डिफिकल्ट बेस वैल्यू नहीं लेंगे, बेस फ्रैक्शन नहीं लेंगे, आप ऐसा ही बेस फ्रैक्शन लीजिए जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकें। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 40/50, तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे 40/50। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो इसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू दे रखी है उसका न्यूमरेटर डिक्रीज्ड है। यहाँ 40 है और नेक्स्ट 4 गिवन है, तो डिक्रीज मीन्स हमें डिवाइड करना होगा, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड किससे करें कि हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाए 4। सो 40 को हम डिवाइड करेंगे 10 से। अगर हम 40 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 50 को भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 50 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में आ जाएगा नंबर 5। सो डिनोमिनेटर की मिसिंग वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास में 5। अब इसी 4/5 को हम बेस बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 4/5 को बेस बना दिया। मल्टीप्लाई मैं किस नंबर से करूं कि मेरे पास में डिनोमिनेटर में आ जाए 10, बिकॉज नेक्स्ट डिनोमिनेटर आ रहा है 10। सो 5 को किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास में डिनोमिनेटर आ जाए 10। सो 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, तो 4 को भी मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से। सो 4 2 ज़ा 8। सो नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास में 8/10, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। इसी को अगर आप डिवीजन फॉर्म में करते, अगर आप बेस लेते यहाँ पर 40/50 को, अगर हम 40/50 को ही बेस लेते, डिवाइड किस नंबर से करते कि डिनोमिनेटर में आ जाता 10। सो 50 को आप किससे डिवाइड करोगे कि डिनोमिनेटर में आपके पास में 10 आ जाएगा, तो 5 से डिवाइड करोगे। सो न्यूमरेटर में भी 5 से करोगे। सो 40 को जब 5 से डिवाइड kरेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा 8। सो आप चाहे 40/50 को बेस बनाकर सॉल्व करें या 4/5 को बेस बनाकर सॉल्व करें। अगर 4/5 को बेस बनाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा और 40/50 को बेस बनाओगे तो आपको डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट 25 आ रहा है। अब हम 25 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 4/5 को अगर मैं बेस बनाती हूं तो इजीली मैं डिनोमिनेटर में 25 फाइंड आउट कर सकती हूं। सी डिनोमिनेटर में 25 चाहिए तो 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी 25 आ जाए, तो 5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी और यहाँ 5 तो न्यूमरेटर में भी 5। सो 4 5 इज इक्वल्स टू 20। सो यहाँ पर हमारा मिसिंग वैल्यू आ जाएगी 20। ओके नेक्स्ट अब हमें चाहिए 80। अब 80 मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? 80 मैं काफ़ी फ्रैक्शंस को बेस बनाकर कर सकती हूँ। अगर आप 40/50 को बेस बनाओगे तो 40/50 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आ जाएगा। 4/5 को अगर आप बेस बनाते हो तो 4/5 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आ जाएगा। 8/10 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आ जाएगा। 20/25 इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आ जाएगा। चारों ही फ्रैक्शन से आप 80 कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे इजी मेरे अकॉर्डिंग रहेगा 8/10। सो यहाँ पर मैं 8/10 को बेस बना रही हूँ क्योंकि हमें क्या चाहिए न्यूमरेटर में 80। सो 8 को इजीली 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आ जाएगा। सो 8 को अगर हम 10 से कर रहे हैं तो 10 को भी 10 से करेंगे। सो 10 10 इज इक्वल्स टू 100। सो यहाँ पर 80 के नीचे जो मिसिंग होगा वो आ जाएगा 100। ओके इसी तरीके से अगर आप 40/50 से भी करके देखते हैं ना, यहाँ देखिए मैं आपको 40/50 को भी बेस बनाकर बता देती हूँ। अगर 40/50 से मल्टीप्लाई करते तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो 80 आ जाता न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 50 × 2 इज इक्वल्स टू 100। सो बेसिकली आप कोई भी फ्रैक्शन को बेस बनाओ, आप बस कैलकुलेशन अगर कर सकते हो तो आप कोई भी फ्रैक्शन बेस बनाकर और नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। नाउ अब लास्ट है 120 मिसिंग वैल्यू। सो 120 हम किसी भी नंबर से निकाल सकते हैं। किसको बेस बनाएं यहाँ पर? अगर मैं 40/50 को बनाती हूँ या मैं 20/25 को बनाती हूँ तो चलिए हम यहाँ पर 40/50 को ही बेस बनाते हैं। तो 40/50 को हमने बेस बनाया, मल्टीप्लाई बाय, अब हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए 120 चाहिए हमें यहाँ पे न्यूमरेटर में। सो 40 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 120 आ जाएगा, तो 40 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, बिकॉज 4 3 इज 12। सो 43 इज 120। सो यहाँ पर 3 से करूंगी तो डिनोमिनेटर में भी 3 से करूंगी। सो 50 × 3 इज इक्वल्स टू 150। तो यहाँ पर जो मिसिंग वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास में 150। सो लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट
एनी मिसिंग वैल्यू। बस मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करते समय आपको स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि आप बेस फ्रैक्शन किसको लोगे, बेस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही आप इजीली मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, फिर चाहे वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो। डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है ये डिपेंड करता है उसके नेक्स्ट फ्रैक्शन में। जो भी गिवन फ्रैक्शन है अगर उसका नेक्स्ट फ्रैक्शन गिवन फ्रैक्शन से इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लाई होकर आएगा, और गिवन फ्रैक्शन से अगर डिक्रीज होगा तो फिर डिवाइड होकर आएगा। ओके, सो प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट, एंड इफ सपोज यू विल फाइंड डिफिकल्टी इन एनी पार्ट then you are free to ask me in the live class. So here I have given you the explanation of question number 14. Let us now move on to the last question of this exercise, that is question number 15. So students, in question number 15 some fractions are given and we have to reduce these fractions into its lowest term. हमें इन fractions को लोवेस्ट टर्म के अंदर रिड्यूस करना है। अब लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम टेबल से कैंसिल करना होगा। अब टू फाइंड आउट दिस सेम टेबल इज अ टास्क। ये फाइंड आउट करना ही एक टास्क हो जाता है कि हम कैसे फाइंड आउट करें कि किस टेबल से हम वन गो के अंदर इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन है पहले हम उसका HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF फाइंड आउट करने के बाद में हमें एक फिक्स्ड नंबर मिल जाएगा और डायरेक्ट हम किसी दूसरे नंबर से ना कैंसिल करके उस HCF वाले नंबर से ही कैंसिल करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टू गेट द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। सी हाउ, लेट अस मूव विथ ए पार्ट। अब जैसा मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, हम HCF फाइंड आउट करेंगे, और HCF फाइंड आउट करने का मेथड मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूं। तो यहां पर जो मेथड मैं फॉलो करूंगी वो होगा डिवीजन मेथड टू फाइंड HCF। डिवीजन मेथड, तो यहां हम 144 को डिवाइड करेंगे 120 से। ओके, क्यों? क्योंकि आपको पता है HCF निकालने के लिए जो ग्रेटर नंबर होता है वो फॉर्मेट के अंदर आता है और जो स्मॉलर नंबर होता है वो फॉर्मेट के बाहर आता है। आप ये मत देखिएगा कि 120 न्यूमरेटर में तो 120 को 144 से डिवाइड करना चाहिए, नहीं। हम छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, हम बड़े नंबर को ही छोटे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो 144 फॉर्मेट के अंदर आएगा और 120 फॉर्मेट के बाहर आएगा। अब 120 1 टाइम्स इज इक्वल्स टू 120, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, 4 माइनस 0 इज 4 एंड 4 माइनस 2 इज 2। Now 120 will come in the format division method। आपको पता ही है जो नंबर से हम डिवाइड करते हैं वही नंबर नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मेट के अंदर प्लेस होता है, और हम तब तक सॉल्व करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब 24 की टेबल में 120 आता है, कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स। तो हम लिख देंगे 5 और यहाँ लिख देंगे हम 120। सो 120 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0, और किससे कैलकुलेट हुआ है? 24 से। सो इस तरफ वाला जो आंसर होता है वो होता है हमारा HCF। तो यहाँ पर जो हमारा HCF कैलकुलेट हुआ है वो कितना हुआ है? 24। अब HCF कैलकुलेट करने के बाद में जो लोवेस्ट टर्म है कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाता है। हम क्या करेंगे, जो भी हमारा गिवन फ्रैक्शन है उसको हम HCF से डिवाइड कर देंगे। हम इस 24 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, तो वन गो में, मतलब एक ही बार में हमारा जो आंसर है वो लोवेस्ट फॉर्म के अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। आप 120 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 5, और 144 को जब आप 24 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 6। सो ये जो 5/6 है अब ये फर्दर किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो सकता। सो दिस इज इन इट्स लोवेस्ट टर्म। अब ये अपने लोवेस्ट टर्म के अंदर कैलकुलेट हो चुका है। सो 5/6 इज द लोवेस्ट टर्म ऑफ 120/144। ओके, सो लाइक दिस वी हैव टू डू ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। जो भी फ्रैक्शन गिवन है पहले आप उसका HCF कैलकुलेट करिए। HCF कैलकुलेट करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा वो लोवेस्ट फॉर्म के अंदर ही कैलकुलेट हुआ होगा। सो देखिए सेकेंड पार्ट हम क्या करेंगे इसके अंदर। ग्रेटर नंबर है यहाँ पर 196, तो मैं 196 को डिवाइड करूंगी 112 से। ओके, सो 112 1 टाइम्स ही आएगा यहाँ पर 112। सो यहाँ पर माइनस करके 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 एंड 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8, 84।
4। अब यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 112, ये जो 112 है ये अंदर फॉर्मेट में आ जाएगा। 84 1 टाइम्स इज इक्वल्स टू 84। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 एंड 10 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2, 28। अब ये जो 84 है ये फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा, यहाँ पर 84 हम अंदर प्लेस कर देंगे। 28 3 टाइम्स इज इक्वल्स टू 84। 28 की टेबल में 3 टाइम्स आता है 84। तो अब आप देखिए हमारे पास में रिमाइंडर में आ गया 0। दैट मीन्स HCF क्या हो गया यहाँ पर HCF हमारा कैलकुलेट हुआ है नंबर 28। दैट मीन्स गिवन फ्रैक्शन को हम 28 से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सो दैट वी विल कैलकुलेट इट्स लोवेस्ट टर्म। सो HCF से हम डिवाइड करेंगे। 28 की टेबल में 112 आता है 4 टाइम्स एंड 196 आता है 7 टाइम्स। सो 4/7 मिल जाएगा हमें लोवेस्ट टर्म। ओके, सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द HCF firstly. Find the HCF, divide with that HCF the numerator and denominator to get the answer. Let us pay attention on next part, 135/333. So यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा 333 और फॉर्मेट के बाहर आ जाएगा 135. Now 135 2 टाइम्स इज 270। 135 की टेबल में 2 टाइम्स आता है 270। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, 3 माइनस 0 इज 3 एंड 13 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 6, 63। 135 डिवीजन फॉर्मेट के अंदर आएगा यहाँ पर 135। 63 2 टाइम्स इज इक्वल टू 126। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, आपके पास में आ जाएगा 9। अब 63 फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा एंड 9 की टेबल में 63 आता है 7 टाइम्स, 9 7 63। सो हमारा HCF आ गया यहाँ पर 9। सो HCF लिखेंगे हम पहले, HCF कैलकुलेट हुआ है 9। अब हम क्या करेंगे, हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देंगे 9 से। सो 135 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे 15 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 37। So 15/37 is the lowest form of 135/333. Let us now move on to D part. Here we have to divide 483 by 253 to find the HCF. So 483 will come inside the division format and 253 will come outside the division format. Now 253 1 times is 253. 1 time आ जाएगा 253। सब्ट्रैक्ट करिए, 3 माइनस 3 इज 0, 8 माइनस 5 इज 3 एंड 4 माइनस 2 इज 2। सो 230। अब जो 253 है वो डिवीजन फॉर्मेट के अंदर आएगा। 253 230 1 टाइम्स इज 230। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 3 एंड 5 माइनस 3 इज 2, 23 और फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा 230। ये जो 230 है फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा एंड 23 10 टाइम्स इज 230। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे 10 और यहाँ लिख देंगे हम 230। सो हमारा जो HCF है वो क्या आया है, 23 आ गया हमारा HCF। इसी 23 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। सो 253/483 डिवाइडेड बाय 23 in the numerator and 23 in the denominator. So after dividing 253 by 23, जब आप 253 को 23 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 11 न्यूमरेटर में और 483 को 23 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21 डिनोमिनेटर में। सो 11/21 is the lowest form of 253/483. I hope all these 4 parts are clear, students. So let us now move on to the remaining parts of question number 15 and let us begin with part E. Here I have solved all the parts for you so that you can understand it easily. See part E, 80/324. तो ये दोनों numbers किस टेबल से कैंसिल होते हैं we don't know. So firstly we will find out the HCF. So 324 फॉर्मेट के अंदर आएगा और 80 फॉर्मेट के बाहर. So 84 times is 320. सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, 4 आ गया रिमाइंडर में और ये जो 80 है इसको हम वापस अंदर रखेंगे फॉर्मेट के. सो 420 टाइम्स इज 80. तो HCF यहाँ पर क्या आया
4। इसी HCF से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे. So in the table of 4, 80 comes 20 times, and in the table of 4, 324 comes 81 times. So this is the lowest term of 80 upon 324. Next, F part 135 upon 55. So here 135 will come inside the division format and 55 outside the division format. Now 55 2s are 110. Subtract करेंगे आप, you will get 25. Now this 55 will come inside the division format. 25 2s are 50. Subtract करेंगे, आ जाएगा 5. Now this 25 will come inside the division format. So 5 5s is 25. 0 आ गया remainder. That means 5 is the HCF. So हम 135 और 55 को HCF 5 से divide करेंगे. So 135 divided by 5 is equals to 27 and 55 divided by 5 is equals to 11. So 27 upon 11 is the lowest form of 135 upon 55. Pay attention on part G now. 60 upon 182. So 182 को डिवाइड करेंगे 60 से. 63 is 180. सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 2. Now this 60 will come inside the division format. So in the table of 2, 60 comes 30 times. So 30 times is 60. Subtract 0 answer. 0, that means 2 is the HCF. So divide 60 and 182 by 2. After division you will get the result 30 upon 91, which is the lowest form of 60 upon 182. Now part H, 21 upon 147. So divide 147 by 21. Here in one step only we will find the answer, because 21 7 times is 147 and the remainder is 0. So here the HCF will be 21. So we have to divide the numerator and denominator by 21. So 21 divided by 21 is 1 and 147 divided by 21 is 7. Now pay attention on I part. Here 209 will be divided by 133 to get the HCF. So 133 1 times is 133, 9 minus 3 is 6 and 10 minus 3 is 7. Bring this 133 inside the division format. 76 ones is 76. Subtract it, you will get 57. Now bring this 76 inside the division format. So 57 one time is 57. Subtract, you will get 19. Now bring this 57 inside the division format. 19 3s is 57 now. So this 19 is the HCF. So we will divide 133 and 209 by 19. So 133 divided by 19 is equals to 7 and 209 divided by 19 is equals to 11. Let us move on to last part. It is 52 upon 130. So 130 will be divided by 52. So 52 2 times is 104. Subtract, you will get 26 as the remainder. Now this 52 will come inside the division format. So 26 2 times is 52. So the remainder is 0. So 26 is the HCF. So here we will divide the numerator and denominator by HCF 26. So 52 divided by 26 2 and 130 divided by 26 number 5. So here I have explained you all the parts of question number 15, and along with it I have given you the solution of explanation of question number 11 to question number 15 of exercise 5.1. I hope students all these questions are clear. Still, if anything is not clear, either leave your comment in the comment section. I will solve your doubt, or you can directly ask me in the live class. So today I am ending my lecture here only. Now I will meet you back in the next online class, where I will be starting the new topic and the new exercise. Till then, please complete this work in your notebook and do take care of yourself. Thank you so much.